how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 7, that is formatting in MS Excel 2010. Is a formatting करते हैं MS Excel 2010 में. So in this chapter we are going to study on how to change the font text, how to change the text of the font, how to change the size of the font, how to change font style, how to change alignment, how to merge in center, how to apply borders, how to add background colors, how to format numbers, how to autofill, autosum, create simple formulas, and how to create formulas with cell reference, and how to delete a formula. So let's begin with this lesson. In this chapter, you will learn about formatting the data and cells to make them more readable and attractive. In इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, डेटा को इन सेल्स को जिससे वो रीडेबल और अट्रैक्टिव बन जाए. Formatting a spreadsheet entails modifying the presentation of text with a worksheet. Formatting in a plain spreadsheet help a user in finding the conclusion. जो user होता है easily conclusion and answers को find कर पाता है without having go to all the cells. पूरे cells में उसे जाना नहीं पड़ता. We will also learn how to use the formulas and functions to perform calculation on the data in the cells. आप क्या learn करोगे कि formulas और functions कैसे परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशंस कैसे यूज करते हैं फॉर्मूलाज और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ डेटा इन सेल्स. So apart from Microsoft Excel, other popular spreadsheet softwares are Apple Number, OpenOffice.org, Calc, and Google Spreadsheet. So now let's talk about changing the font of text. कैसे font of text को change करते हैं? First, font are different styles of writing. Fonts क्या होते हैं? different styles होता है writing के, different तरीके होते हैं writings के. These are your fonts. So to change the font type, follow the given step. First आपको कहाँ click करना है, तो select करना है desired cell और range of cells where you want to change font size. Suppose आपने select कर लिया, then आपको click करना है home tab पे, then आपको click करना है font option पे. drop down arrow present है in the font group, एक drop down list appear हो जाएगी. Then after that you have to choose your font. Click करना है, select करना है desired font, means on the font list the selected font style will be applied. जो selected font style होगा Arial wrap आपका apply हो जाएगा. Now changing the font size, font के size को कैसे change करते हैं? To change the font size, follow the given steps. Select करना है आपको desired cell और range of cells where you want to change the font size. जहाँ पे आपको font size को change करना है. Click on font size, drop down arrow present in font group. आपको click करना है font size पे, जो drop down arrow present है font group पे, एक drop down list appear हो जाएगी. Select करना है आपको desired font size को, list से the selected font size will be applied. जो selected font size होगा वो apply हो जाएगा. So like this, जो selected font size होगा जब आप select करोगे वो apply हो जाएगा. Now changing the font style को कैसे change करते हैं? The most used font styles are bold, italic and underline. Font styles होता है bold, italic and underline. So these styles could be used to highlight the important cells. इनको use कर सकते हैं highlight करने के लिए important cells को. To change font style of text, follow the given steps. Select करना आपको desired cell और range of cells जहाँ पे आपको वो style लगाना है. Then जाना है आपको home tab पे click करना है, then click करना है bold option पे. bold करने के लिए font को present जो है font group to make the text bolder. इटैलिक पे क्लिक करोगे इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा, थोड़ा टिल्टेड स्टाइल में हो. आप अंडरलाइन पे क्लिक करोगे, अंडरलाइन ऑप्शन आपके फॉन्ट आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करेगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंजिंग अलाइनमेंट. अलाइनमेंट को कैसे चेंज करता है? लेफ्ट, राइट और सेंटर. द प्लेसमेंट ऑफ सेल कंटेंट कैन बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सेल मार्जिन्स. दिस इज कॉल्ड चेंजिंग अलाइनमेंट्स. का मतलब क्या होता है? चेंजिंग अलाइनमेंट होता है. So for example, the number could be aligned to the right of the cell. जो number होता है right of the cell में aligned होता है for better readability. And the headings could be center aligned. Headings center aligned होती है. To change alignment, follow the given steps. Select करना आपको desired cell और range of cells whose content you want to align. जिसका content आपको align करना है. Then click करना है आपको home tab पे. The alignment option available है left, right और center and top, middle, bottom. Select करना है आपको alignment according to your choice. अपनी choice के according select करना है. Now merge and center. Two or more adjacent cells can be merged to create a single cell using merge and center option. So दो या दो से ज़्यादा cells को हम एक साथ combine के लिए merge कर सकते हैं, single cell बना सकते हैं. A generic example of the uses would we when a heading is used. जनरल के एग्जाम जब हम पहले जब हमें हेडिंग को यूज करते हैं कवर करने के लिए फ्यू सेल्स को इन द स्प्रेडशीट.
कि यूज मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट आपको क्लिक करना है सेल्स पे, सेलेक्ट करना है रेंज ऑफ सेल्स जिनको आपको मर्ज करना अलाइनमेंट के लिए सेंटर अलाइनमेंट। देन क्लिक करना है आपको होम टैब पे, देन क्लिक करना है आपको मर्ज एंड सेंटर पे। वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन गिवन ड्रॉप डाउन लिस्ट से। सो एक लिस्ट अपीयर होगी, वहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर शो, मर्ज अक्रॉस मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज सेल्स। सो सिलेक्ट करना आपको मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन वहाँ से। The select range of cells will be merged and center aligned. Now applying borders. Borders कैसे apply करते हैं? Borders can be applied to a section of cells. To apply a borders to the cell or range of cells, follow the given steps. Select करना आपको cell और range of cells जिसमें आपको apply करना है border. And click करना है home tab पे. And click करना है border option जो drop down arrow present है in the font group. The different types of border appear हो जाएंगे आपके सामने. So click करना है आपको desired border पे from the list. You can also change the border color. आप border color को भी change कर सकते हो. The select border style will be applied. जो selected border style हो वो applied हो जाएगा. To make the border better visible, default grid lines can be turned off. जो default grid lines को तुम turn off कर सकते हैं layout tab से. Adding a background color. Background color को कैसे add करते हैं? तो apply a background color, follow the given steps. First क्या करना है? Select करना है आपको range of cells जहाँ पे आपको background color apply करना है. देन क्लिक करना है आपको होम टैब पे, देन क्लिक करना है आपको फिल कलर ऑप्शंस पे। एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा प्रेजेंट है जो फॉन्ट रूम में कलर लिस्ट विल अपीयर, कलर लिस्ट अभी आपके सामने अपीयर हो जाएगी। सेलेक्ट करना है आपको डिजायर्ड कलर फ्रॉम द लिस्ट, द सिलेक्टेड कलर विल बी अप्लाइड। द सिलेक्टेड कलर होगा अप्लाई हो जाएगा फिर सेल और रेंज ऑफ सेल्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फॉर्मेट नंबर। फॉर्मेटिंग नंबर्स। Number formatting means changing the appearance of number without changing their values. मतलब जो आप नंबर्स ही लुक को चेंज कर देते हो, अपीयरेंस को चेंज कर देते हो, उनकी वैल्यूज को चेंज करे बिना। Hence when you change the appearance of number, it will change in cells. वो चेंज होगी सेल्स में, बट सेम रहेगी आपकी फॉर्मूला बार में। To change appearance of a number, follow the given step. तो फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है अपना सेल, देन क्लिक करना है आपको होम टैब पे, देन क्लिक करना है फॉर्मूला बार पे। देन क्लिक करना है फॉर्मेट ऑप्शंस पे, ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट है फिर सेल ग्रुप का। सो अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर फ्रॉम सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल्स, वहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल्स को सेलेक्ट करना है। देन अ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने। सेलेक्ट करना है आपको नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको फिल करना है कैटेगरी लिस्ट ऑप्शन में फिल करने के बाद एंटर करना है 2 इन द डेसिमल प्लेसेस। गो टू एंटर करने के बाद दैट इट वो डिस्प्ले करेगा नंबर विथ 2 डेसिमल प्लेसेस। देन क्लिक करना है आपको क्लिक ऑन द यूज 1000 सेपरेटर चेक बॉक्स। 1000 सेपरेटर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है टू सेपरेट करने के लिए नंबर्स को 1000 बाय अ कॉमा एंड क्लिक कर देना है ओके पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोफिल ऑप्शन. So if you enter a value that follows a pattern, Excel will automatically fill the remaining cells. Excel automatically fill कर देगा remaining cells of series को for using the autofill feature. For example, enter करना है weekdays in worksheet. So to enter a list of weekdays in a worksheet, आपको weekdays fill करने हैं autofill option से। So कैसे करते हैं? Enter करना है आपको Sunday A1 कॉलम में, प्लेस करना है माउस पॉइंटर को बॉटम में, बॉटम राइट कॉर्नर में अपने सेल के। देन वो चेंज करना है आपको, वो प्लस साइन में चेंज होएगा। देन क्लिक करना है एंड ड्रैग करना अपने माउस पॉइंटर को A7 तक, क्योंकि 7 हमारे डेज होते हैं। देन रिलीज कर देना है अपने माउस को 7 के कॉर्नर पे जाके। दिस कैन बी अप्लाइड टू नंबर्स में भी अप्लाइड होता है। इट विल राइट टू इन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके रिटर्न हो जाएंगे यहाँ पे। सो A1 से 50 A1 एंड 115 इज सेल A2 and then try करना autofill to the other cells. The cell will be filled in some same pattern. जो टेल सेल होगा सेम पैटर्न में फिल हो जाएगा 15, 20, 25, 30 etc. Now auto sum feature of Excel is used quickly to find sum of a series in a row or column. ही quickly use होता है series find करने के लिए रो और कॉलम में। To use auto sum, follow the given step. आपको enter करना है series of marks obtained by some students. series of marks होते हैं जो कुछ students obtain करते हैं class 6 में। and to find the sum of their marks, first select करना है आपको cells जो उसमें क्या होगा data होगा cells का जिसमें which you want the sum to appear, जिसमें आप चाहते हैं sum appear हो। then click करना है home tab पे, then click करना है auto sum option पे drop down arrow में तो present है editing group पे, then click करना है sum पे। the sum will appear in the desired cell, जो sum होगा आपके
डिजायर्ड सेल में अपीयर हो जाएगा। ना क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज, सिंपल फॉर्मूलाज को कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट होता है? इज इक्वल टू साइन स्टार्टिंग में लगाना होता है। सो अ फॉर्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन। फॉर्मूला क्या होता है? एक इक्वेशन होती है जो क्या परफॉर्म करना है, एक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। लाइक अ कैलकुलेटर, एक्सेल कैन एग्जीक्यूट फॉर्मूलाज टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कैलकुलेटर की तरह एक्सेल एग्जीक्यूट करता है फॉर्मूलाज को, जिसमें आप ऐड करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो। One of the most useful feature of Excel is its ability to calculate using a cell address. इसकी most useful feature क्या है? इसका ability है cell use करने, cell address को represent करने के लिए value in a cell. This is called using a cell reference. इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको हम क्या कहते हैं? Using a cell reference कहते हैं। In order to maximize the capability of Excel, it is important to understand how to create simple formula. Important है अंडरस्टैंड करना कि कैसे क्रिएट करते हैं सिंपल फार्मूला को इस सेल रेफरेंस को यूज करके। एमएस एक्सेल यूज करता है स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स फॉर इक्वेशन, जैसे आपका प्लस साइन हो गया एडिशन के लिए, माइनस साइन हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए, एस्टेरिस्क साइन हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश हो गया डिवीजन के लिए, एंड कैरेट हो गया आपका एक्सपोनेंट्स के लिए। सो ऑल फार्मूला मस्ट बिगिन विद द इक्वल्स टू साइन। आपके सारे फार्मूला किससे बिगिन होने चाहिए? इक्वल्स टू साइन से बिगिन होने चाहिए। नाउ टू क्रिएट अ फॉर्मूला यूजिंग वैल्यू इन एक्सेल, फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है सेल जहाँ पे आपको आंसर चाहिए, देन टाइप करना है इक्वल्स टू साइन, देन टाइप इन फॉर्मूला, you type in formula you want Excel to calculate, then press करना है आपको एंटर की को। The formula will be calculated, फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा एंड वैल्यू आपके डिस्प्ले हो जाएगी आपके डिजायर्ड सेल में जो आपने सेलेक्ट किया था, like this. Now creating formula with cell reference. Formulas कैसे create करते हैं cell reference से? Creating a formula with cell reference is useful because you can update data in your worksheet. आप अपडेट कर सकते हो डेटा अपनी वर्कशीट में without having to rewrite the values in formula. To create a formula using cell reference, follow the given steps. First आपको select करना है cell जहाँ पे आपको आंसर चाहिए, for example B5. देन टाइप करना है इक्वल्स टू साइन, देन टाइप करना है सेल एड्रेस दैट कंटेन्स नंबर्स, जिसमें नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और फॉर फॉर्मूला फॉर एग्जांपल B2 प्लस B3 प्लस B4। नाउ प्रेस करना है आपको एंटर की को। द फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड एंड द वैल्यू आपके अपीयर हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी आपके सेल में। नाउ क्रिएटिंग फॉर्मूला यूजिंग पॉइंट एंड क्लिक मेथड। पॉइंट एंड क्लिक मेथड ऑफ एक्सेल क्रिएट्स अ फॉर्मूला बाय यूज ऑफ माउस पॉइंटर टू एक्सेल रेफरेंस to a formula by just clicking on it. This method quickly adds, ये जो method है quickly add करता है कि cell reference को formula में and reduce करता है typing errors और misreads because the data we need can be actually seen better. जो हमें data चाहिए वो actually हम अच्छे से देख सकते हैं writing cell reference. To create a formula using point and click method, follow the given step. First आपको select करना है cell जहाँ पे आप चाहते हो आंसर अपीयर हो, फॉर एग्जाम्पल D2 आपने सेलेक्ट करा, देन टाइप करना है इक्वल्स टू साइन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल टू बी इंक्लूडेड, कि फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है जो आपको चाहिए इंक्लूड होना चाहिए फॉर्मूला में। देन फॉर एग्जाम्पल B2 टाइप करना है आपको ऑपरेटर जो भी चाहिए, यू नीड टू फॉर्मूला लाइक मल्टीप्लिकेशन साइन भी हो सकता है, प्लस डिवीजन कुछ भी हो सकता है, एंड क्लिक करना है आपको नेक्स्ट सेल इन द फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल C2 पे क्लिक करना है एंड एंटर की प्रेस कर देनी है, तो फॉर्मूला वो कैलकुलेट हो जाएगा एंड वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी सेल में। नाउ डिलीटिंग अ फॉर्मूला, फॉर्मूला को डिलीट कैसे करते हैं? व्हेन यू डिलीट अ फॉर्मूला द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला इज आल्सो डिलीटेड, जो रिजल्टेड वैल्यू आपके फॉर्मूला की वो भी डिलीट हो जाती है। हाउएवर यू कैन इंस्टेड रिमूव द फॉर्मूला, आप रिमूव कर सकते फॉर्मूला को एंड यू कर द रिजल्टिंग वैल्यू अपने फॉर्मूला डिस्प्ले में, फॉर्मूला रिजल्टिंग वैल्यू अपने फॉर्मूला डिस्प्ले in the cell. To delete a formula along with resulting values, follow the given steps. सेलेक्ट करना आपको सेल और रेंज ऑफ सेल्स जिसमें फॉर्मूला है, देन प्रेस कर देना है डिलीट की को। टू डिलीट अ फॉर्मूला विदाउट रिमूविंग इट्स रिजल्टिंग वैल्यू, उसकी रिजल्टिंग वैल्यू को डिलीट करे बिना, रिमूव करे बिना हम क्या कैसे कर सकते हैं फॉर्मूला को डिलीट? सेलेक्ट करना आपको सेल को और रेंज ऑफ सेल्स को जिसमें फॉर्मूला है, देन क्लिक करना आपको होम टैब पे, क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शंस, आपको कॉपी ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑन होम टैब इन द ग्रुप को क्लिपबोर्ड दो क्लिक करना आपको एरो लो paste and then click करना है आपको paste values पे। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.